ملتان میں بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے باعث ایکسپورٹرز حضرات پریشانی کا شکار۔ ایکسپورٹرز نے فیل فور کیے گئے معاہدوں میں نظر ثانی کی اپیل کر دی۔ چیئرمین آل پاکستان بیڈ شیٹ ایسوسی ایشن عاصم شاہ کی روہی سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا آئی پی پی سے کیے گئے معاہدوں کو ریوائز کیا جائے، ایکسپورٹ انڈسٹری کو بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ ملتان میں جنوبی پنجاب کے صنعت کاروں کی آئی پی پیز کے حوالے سے بڑی بیٹھک۔ صدر ایوان صنعت و تجارت ملتان میاں راشد اقبال کی اہم پریس کانفرنس۔ حکومت سے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان میں جنوبی پنجاب کے صنعت کاروں کی آئی پی پیز کے حوالے سے بڑی بیٹھک۔ صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میاں راشد اقبال کی اہم پریس کانفرنس سے خطاب میں میاں راشد اقبال کا کہنا تھا کہ بجٹ کے بعد کاروباری برادری کاروبار کرنے سے بھی قاصر ہے۔ ہم حکومت سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ قیمت 9 سینٹ تک لے کر آئی جائے، جو کہ اس وقت 16 سینٹ چل رہی۔ 16 سینٹ کے اوپر کوئی کاروبار فیزیبل نہیں ہے، کوئی انڈسٹری چلانا فیزیبل نہیں ہے۔ سب کاروبار بند ہو جائیں گے، ساری انڈسٹری بند ہو جائے گی، ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی۔ میاں راشد اقبال کا مزید کہنا تھا کہ مارک اپ ریٹ کو کم کر کے 12% پر لایا جائے۔ کوئی بھی صنعتی ادارہ 72 روپے یونٹ نہیں بھر سکتا، اس کو کم کیا جائے۔ جتنے آئی پی پیز ہیں ان کا دوبارہ سے آڈٹ کروایا جائے، ری ایویلویشن کرائی جائے کہ اصل میں ایسٹس یہ ہیں کتنے کے، اور پھر اس حساب سے کیپیسٹی چارجز ان کو دیے جائیں۔ ساری دنیا میں کیپیسٹی چارجز 8 روپے یونٹ، ہمارے ملک میں 24 روپے یونٹ۔ ہم تو آلریڈی ان آئی پی پیز کو 45% کے حساب سے جو ہم نے ان کو آر او آئی دی ہے، وہ ہم اتنے پیسے زیادہ ان کو دے چکے ہیں کہ اگلے 10 سال ہم ان کو 1 ٹکا بھی نہ دیں تو ان سے مفت بجلی لے سکتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے صنعت کاروں نے سیمنٹ ایسوسی ایشن اور گندم ایسوسی ایشن کی ہڑتال پر مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ کیمرامین محمد آصف کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ ملتان کے جنرل بس اسٹینڈ پر ٹرانسپورٹرز نے کرائے میں خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز انتظامیہ کی طرف سے جاری کرایہ نامے کے برعکس منمانا کرایہ وصول کرنے لگے۔ ملتان میں جنرل بس سٹینڈ پر مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیسے ہوئے ہیں، رہی صحیح کسر ٹرانسپورٹرز نے پوری کر دی۔ ٹرانسپورٹرز انتظامیہ کی طرف سے جاری کرایہ نامہ کے برعکس زیادہ کرایہ وصول کرنے لگے، جس پر شہریوں نے انتظامیہ کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ عوام کرائے سے بہت تنگ ہے کہ کرائے بہت زیادہ ہیں، عوام کی مزدوری کم ہے، 400-500 روپے کما کے آتے ہیں، 300-400 روپے کرایہ لگا دیتے ہیں، تو گھر کو کیا لے کے جائیں گے؟ عوام کرائے سے بہت پریشان ہے کہ ٹرانسپورٹرز کے زیادہ کرایہ وصول کرنے پر شہریوں کا کہنا تھا کہ ملتان سے ڈیرہ غازی خان کا کرایہ 470 کی بجائے 500 روپے وصول کیا جا رہا ہے، جبکہ تونسا، علی پور، جتوئی اور لیا سمیت دیگر شہروں کا کرایہ بھی 20 سے 100 روپے تک بڑھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے طلبہ کے ساتھ ساتھ مزدور طبقہ بھی شدید پریشان ہے۔ عمل کون کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کے انسٹرکشن پہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، جب تک ان کی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، کوئی وہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ ہی وارث ہے۔ 500 روپے جی لگا رہے ہیں، محرم کے بعد اب چھٹیوں پہ آئے، اب لگا رہے ہیں کرایہ نامہ۔ سر یہ پیٹرول بڑھنے سے پہلے ہمارا 480 روپے تھا، اب بڑھایا کرایہ ہم نے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ جنرل بس سٹینڈ پر اوور چارجنگ کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ کسی بھی بس ٹرمینل پر سرکاری کرایہ نامہ نصب نظر نہیں آ رہا۔ انتظامیہ ٹرانسپورٹرز کو سرکاری کرایہ نامہ کا پابند بنائے تاکہ عام عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ شہر اولیا میں اسٹریٹ لائٹس کا فقدان۔ ملتان شہر کے 95% روڈ اسٹریٹ لائٹ سے محروم ہے۔ متعدد سڑکیں جرائم پیشہ افراد کی اماجگاہ بننا شروع ہو گئی ہیں۔ ملتان شہر کے 95% روڈ اسٹریٹ لائٹ سے محروم۔ پروگرام بنام سرکار میں شہریوں کا کہنا تھا کہ رات ہوتے ہی شہر اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ افسران خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ایم ڈی اے روڈ، کچہری روڈ، جیل روڈ، ایکسائز روڈ اور آرٹ کونسل روڈ پر اسٹریٹ لائٹس موجود ہیں مگر جلتی نہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے اسٹریٹ لائٹس تو لگا دی جاتی ہیں مگر انتظامیہ ان کی دیکھ بھال نہیں کرتی۔ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ یہ آرٹس کونسل ہے نا، فلائی اوور چڑھتے سٹارٹ ہوتے وقت ایک آدمی کو جو ہے نا اندھیرے میں جی ایل آئی تھی اس کے پاس میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اس نے جو ہے نا اس فٹ پیری کے اوپر چڑھا دی گاڑی، فٹ پاتھ کے اوپر چڑھا دی۔ فٹ پاتھ کے صرف لائٹ کی ریزن ہی لائٹ نہیں تھی۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر روڈ
नशे के आदी अफराद और जराइम पेशा अफराद की अमाजगाह बनना शुरू हो चुके हैं। रात के वक्त इन सड़कों पर सफर करने से भी डर लगता है। अब जैसे मशरूम शहर रोड हो गया, कोई लाइट नहीं है। अच्छा, अभी चौकमाले से आगे चले जाओ खास फैक्ट्री साइड पे, कोई लाइट नहीं है। इधर से नवाबपुर रोड पे चले जाओ, कोई लाइट नहीं है। ये सुरमैनी रोड पे चले जाओ, कोई लाइट नहीं है। वाशलाली एयरपोर्ट रोड है, कोई लाइट नहीं है। क्योंकि हम रिक्शा चलाते हैं, हमें तो पता है, हालांकि अंधेरे क्या फायदा उठा के कई क्रिमिनल लोग फायदा भी उठा जाते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स को फाल करने का मुतालबा कर दिया। टीम बनाम सरकार के साथ राणा सलमान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में मैपको हमले की मुबैना नाअहली शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। फैज कॉलोनी मॉडल टाउन ए में 400 वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन की तारें जमीन पर लटकने लगी। बहावलपुर में मैपको मॉडल टाउन डिवीजन की मुबैना नाअहली फैज कॉलोनी मॉडल टाउन ए के मकीनों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। कॉलोनी से गुजरने वाली 400 वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन की तारें जमीन पर लटकने लगी। दरख्तों के साथ तारों की स्पार्किंग से टहनियां भी सूख गई हैं। कॉलोनी में आए रोज करंट लगने के वाकयात आम हो गए। इलाका मकीनों ने SEO मैपको बहावलपुर सर्कल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। गए थे एप्लीकेशन देने, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस ही नहीं दिया। कह रहे तक तो 2-3 दिन तक, 3 महीने हो गए इस बात को। अब दोबारा कोशिश करें, कोई मेहरबानी करें इसको सेट करने, तो फिर कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। खतरा वगैरह तो हो सकता है ना। देखें अब दरख्त वगैरह भी स्पार्क की वजह से सारा जल गया है। इसको कुछ मेहरबानी करें यार। इलाका मकीनों का कहना था कि शदीद डर और खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। घरों से सामान बाहर नहीं निकाल सकते। करंट लगने के डर से बच्चों को घरों में बंद रखते हैं। 12 मरतबा मैपको डिविजनल ऑफिस को दरखास्तें दी, ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया। करंट लगने से कोई हादसा पेश आया तो जिम्मेदार मैपको इंतजामिया होगी। पहले दरखास्त दी थी वापटा वालों को, वो आया भी नहीं है। दोबारा फिर दरखास्त करते हैं, इसको दोबारा सेट किया जाए। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि फैज कॉलोनी में जमीन पर लटकती तारें मैपको इंतजामिया की नाअहली है। मैपको हकाम शायद किसी बड़े हादसे के मुंतजिर हैं। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। शहर ओलिया के बासियों की मुश्किलात में इजाफा। वासा इंतजामिया की मुबैना नाअहली के बायस बंदी पार्क के करीब सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ गया। राहगीरों को मुश्किलात का सामना, हादसात मामूल बन गए। मुल्तान वासा इंतजामिया की मुबैना नाअहली सामने आ गई। नाकिस कारकर्दगी के बायस मदनी पार्क के करीब मेन सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ गया। शहरियों का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमती दावे सिर्फ दावे होते हैं, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से ग्राउंड फेलियर रोनुमा होते हैं। कल रात देखिए, अब इतनी बारिश भी नहीं, मामूली सी बारिश हुई है जिसकी वजह से ये टूट गया। ये उनकी नाकामी के दावे उनकी इतनी बड़ी बड़ी है। 30 साल से इस इलाके की हुकूमत कर रहे हैं नवाज शरीफ। मरियम नवाज के अब दावे दे के, उनकी कामें दे के इनके कामें ये। शहरियों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश होने की वजह से मेन रोड पर गड्ढा पड़ना इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। बाहर से लेते हैं पैसा वगैरह, जो है बजट लेते हैं और काम ये इतना मजबूत करते हैं। ये इंतजाम हुआ पड़ा है इनका, जो है एक बारिश हुई है, मामूली बारिश हुई है, इतनी बारिश भी नहीं हुई। रोडों पे पानी भी कहीं नहीं नजर आ रहा। और देखें इनका ये काम हुआ पड़ा है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर ग्राउंड फेलियर को ठीक करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हारून के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोर्ट फीस में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत ने कोर्ट फीस में 500 गुना इजाफा किया था। सदर बार सज्जाद हैदर मेतला का कहना है फीस में इजाफे का सारा बोझ साइलिन पर पड़ेगा। मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोर्ट फीस में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर बार सज्जाद हैदर मेतला और जनरल सेक्रेटरी सैयद अनीस मेहदी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट में तरमीम करके कोर्ट फीस में 500 गुना इजाफा किया है, जिससे इंसाफ महंगा हो गया, सारा बोझ साइलिन पर पड़ेगा। इन्होंने फाइनेंस एक्ट में तरमीम करके जायद कीमतों को अदालत अदलिया में चैलेंज करने की भी मंजूरी दे दी। और 500 टाइम उन्होंने कोर्ट फीस बढ़ा दी है। वकालतनामे के ऊपर मुख्तलिफ जो मिसलिनियस एप्लीकेशनें कोर्ट में सबमिट होती हैं, ये एक गरीबों को बुनियादी इंसाफ की सहूलत से महरूम करने के लिए
हमें तो नजर आ रहा है। जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार सैयद अनीस मेहदी का कहना था कि पंजाब हुकूमत के फाइनेंस एक्ट को मुस्तरद करते हुए फाइनेंस एक्ट आइन में दिए गए बुनियादी हकूक के खिलाफ है। कोर्ट फीस बढ़ने से गरीब इंसाफ की बुनियादी सहूलत से महरूम होंगे। कई लोग इंसाफ वसूल करने में नाकाम रहेंगे और अदालतों तक रसाई नामुमकिन होगी। तो हमारी एग्जीक्यूटिव, जिस तरह सदर साहब ने फरमाया कि हम इसकी भरपूर जोर मजम्मत करते हैं और इस जो मंजूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है इसको अदालतों में चैलेंज करेंगे और आला अदलिया तक जाएंगे और इंशाल्लाह इसको मनसूखी की तरफ हमारी बात पूरी इस तरह गामजन रहेगी। वोकला का कहना था कि हुकूमत पंजाब जुल्म कर रही है। हाई कोर्ट बार इस एक्ट की मजम्मत करती है। फाइनेंस एक्ट को अदालत में चैलेंज करके खत्म करवाएंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मार इमरान नवाज, रोही न्यूज, मुल्तान। मुल्तान में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जनूबी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की डॉक्टर कुछ पॉलिसियों के खिलाफ पीएमए पंजाब का लाहौर में एहतजाज का ऐलान। पीएमए पंजाब का हुकूमत की डॉक्टर कश पॉलिसियों के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जनूबी पंजाब की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मसूद हिराज का कहना था कि हेल्थ केयर कमीशन अतायत के फरोग का इदारा बन चुका है। बगैर किसी तहकीक के क्लिनिक और अस्पताल सील और भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं। डॉक्टरों को दिहाड़ी पर भर्ती करके उनकी इज्जत नफ्स मजरूह की जा रही है। डॉक्टर्स को मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट पर 3 साल से काम करने वालों को मुस्तकिल किया जाए। हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कहते हैं, इसकी कारकर्दगी और माली मामलात को जांचने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। और हम हुकूमत पंजाब से ये भी मुतालबा करते हैं कि लोकम दिहाड़ी पर डॉक्टर्स की भर्ती करके उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करने की पॉलिसी को फिलफोर चेंज किया जाए, इसको रोका जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर डॉक्टर्स की भर्ती के अमल को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स साल हर साल से कॉन्ट्रैक्ट पे और एडहॉक पे काम कर रहे हैं और जिनको 3 साल भी गुजर चुके हैं, बल्कि कुछ को तो 10-10 साल हो चुके हैं, इन सब को मुस्तकिल किया जाए। डॉक्टर मसूद हिराज का मजीद कहना था कि डॉक्टरों की सेंट्रल एडिक्शन, MSMD और डिप्लोमा PGRs के मसाइल हल किए जाएं। पीएमए पंजाब की कॉल पर 24 जुलाई को डॉक्टर्स लाहौर में एहतजाजी धरना देने जा रहे हैं। जनूबी पंजाब के डॉक्टर्स बड़ी तादाद में लाहौर धरने में शरीक होंगे। 24 जुलाई बरोज बुध लाहौर में एहतियाजी मार्च और धरना दिया जाएगा हेल्थ केयर कमीशन के सामने। साउथ पंजाब इंशाल्लाह और साउथ पंजाब की जितनी भी ब्रांचेस यहाँ पे मौजूद हैं पूरी इंशाल्लाह ताला इस पर लब्बैक कहेंगे और हर ब्रांच से डॉक्टर्स कसीर तादाद में काफिलों की सूरत में लाहौर पहुंचेंगे और अपने जायज मुतालबात के लिए, अपने राइट्स के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर नजीब चिश्ती, डॉक्टर जैद खान, डॉक्टर खुदा बख्श, डॉक्टर मकबूल आलम, डॉक्टर जाहिद, डॉक्टर यूसुफ लगारी, डॉक्टर इरफान प्राचा, डॉक्टर मुर्तजा बलूच, डॉक्टर जुल्करनैन हैदर ने भी शिरकत की। कैमरामैन राना बिलाल के साथ राना बिलाल यूनस, रोही न्यूज, मुल्तान। मुल्तान में मार्केट कमेटी की गफलत या मुबैना नाअहली। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में सफाई के नाकिस इंतजामात। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद सब्जी मंडी में गंदगी और कीचड़ के अंबार लग गए। मार्केट कमेटी मुल्तान की नाकिस कारकर्दगी। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में सफाई के नाकिस इंतजामात। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद सब्जी मंडी में गंदगी और कीचड़ के अंबार लग गए। मंडी में ताफून फैलने से लोगों के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। आड़ती कहते हैं कि मार्केट कमेटी को कोई परवाह ही नहीं, हम गंदगी पर बैठकर सब्जियां बेच रहे हैं। कमेटी वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, अपने मर्जी से आते अपनी मर्जी चले जाते हैं। देखो कितनी गंदगी हो रही है। अब कल है इतवार, कल वैसी छुट्टी है और बंदे मर जाएंगे। गर्मी कस्टमर आएगा तो हमारी रोजी बनेगी। ये सिस्टम है जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं देखे। आप सारे पास से चले जाओ, गंदगी है, सारे पास से चले जाओ। आड़तियों का कहना था कि जब सफाई सुथराई नहीं होगी तो मंडी में गाहक कैसे आएंगे। ये कूड़ा उठाते नहीं मार्केट कमेटी वाले। जो ब्लेड लगाता है वो एक चक्कर तो लगाएगा, दूसरा चक्कर नहीं लगाएगा वो, क्योंकि सारा पेट्रोल वो खा जाता है। जो गाड़ी अंदर आएगी उसके भी पैसे हैं, जार माल जाएगा पर्ची 5 रुपए उसके भी हैं, तो हमें क्या रिलीफ मिल रहा है आवाम को। आड़तियों ने मुतालबा किया कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान इस मामले का नोटिस लें। मंडी में सफाई सुथराई ना होने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से दूर। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमत मार्केट कीमतों में फर्क बरकरार। लहसुन सरकारी निक 374 के बजाय 600 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। फलों में अंगूर 800 और अनार 500 रुपए फी किलो दस्तयाब है।
सब्जियों और फलों की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार। थाईलैंड अदरक 600 और चाइना लहसुन 500 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी नरखनामा में अदरक 580, लहसुन 374 और लीमू 320 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में टिंडे और भिंडी 200, टमाटर 160, हरी मिर्च और प्याज 120 रुपए फी किलो है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर 120, प्याज 90, हरी मिर्च 98 और आलू 74 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मटर 400, चाइना गाजर 320, अरबी 240 और कद्दू 100 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मार्केट में आम क्वालिटी और अकसाम के मुताबिक 150 से 350 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। अंगूर 800, आलू बुखारा 400 से 600 और खुबानी 320 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। अनार 500, नाशपाती 400 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन है। चिकन 33 रुपए मजीद महंगा होकर 570 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 240 रुपए फी दर्जन पर बरकरार हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पंजाब सरकार का तालीम दोस्त इकदाम। खानेवाल में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दे दिया गया। स्कूल में बाकायदा तौर पर दाखिलों का आगाज भी हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तालीम दोस्त इकदाम। खानेवाल 12AH में गर्ल्स हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दे दिया गया। MPA राना सलीम हनीफ ने फर्स्ट ईयर में तालिबात के दाखिले भी किए। इनका कहना था कि वजीर आला पंजाब दूर दराज के इलाकों की तालिबात की हायर एजुकेशन के लिए अमली इक़दाम कर रही है। जो हमारे 12H हाई स्कूल की अपग्रेड हुआ है, इससे हमारे इस इलाके की बच्चियाँ अच्छी तालीम हासिल अपने घर में रह के भी हासिल करेंगी। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से और हमारे यहाँ के साज़ा की मेहनत से हमारे वज़ीर आला के विजन के मुताबिक ये आज ये दिन आया, जो यहाँ के लोग असल चाहते थे कि यहाँ हमारी बेटियाँ FSC तक की तालीम अपने गाँव में रह के हासिल कर सकें। CEO एजुकेशन मोहम्मद अल्ताफ का कहना है कि हायर सेकेंडरी स्कूल की फर्स्ट ईयर क्लास में 50 तालिबात के दाखिलों का हदफ मुकर्रर किया है। इंशाल्लाह हमने जो बुनियादी तौर पर पहली क्लास है वो हमने इनको एटलीस्ट 50 का टारगेट दिया है। इससे हम एक्सीड करके 100 तक कोशिश करेंगे पहली क्लास के दाखिले का। और वसाइल की कमी, स्टाफ की कमी इंशाल्लाह आड़े में नहीं आएगी। मैंने अपने स्टाफ को डायरेक्शन दे दी है कि हमने मेहनत करके इसको कामयाब बनाना है और अच्छे रिजल्ट्स देने हैं। स्कूल की तालिबात का कहना था कि पसमानदा इलाकों में मैट्रिक के बाद तालीम हासिल करना मुश्किल हो जाता है। दूर दराज कॉलेजेस में तालिबात का जाना मुमकिन न था। स्कूल को हायर एजुकेशन का दर्जा मिलने पर खुश हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस बैठी हैं, इसकी वजह से मतलब बहुत सारी गांव की जो लड़कियां हैं मैट्रिक के बाद अपनी तालीम आगे जारी नहीं रख सकती थी। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद लड़कियां आगे पढ़ सकती हैं, गांव की लड़कियां तरक्की कर सकती हैं। इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और स्कूल कौंसिल के मेंबरान ने शिरकत की। तालिबात ने अपनी तकरीर में ख़वातीन की आला तालीम की अहमियत को उजागर किया और MPA राना सलीम हनीफ का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्तान में एडिशनल IG जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान खान का पुलिस लाइन का दौरा, ज़ेरे तामीर लाइसेंस ब्रांच का विजिट करके तामीराती कामों का जायजा लिया। CPO सादिक अली ने लाइसेंस ब्रांच के तामीराती कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मुल्तान में एडिशनल IG जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने पुलिस लाइन का दौरा किया और ज़ेरे तामीर लाइसेंस ब्रांच का विजिट करके तामीराती कामों का जायजा लिया। CPO सादिक अली ने लाइसेंस ब्रांच के तामीराती कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल IG जनूबी पंजाब ने जारी कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। जो हमारे पुलिस के वेलफेयर के काम है, पुलिस को एक अच्छा माहौल देना जिसमें वो बैठ के काम करें और आवाम की खिदमत कर सकें, उस हवाले से जो CPO साहब ने और इनकी टीम ने यहाँ पे काम किया है, उसमें आज खास तौर पे CTO का दफ्तर है, DSP सिटी ट्रैफिक का दफ्तर है, उनके स्टाफ का दफ्तर है। एडिशनल IG जनूबी पंजाब का कहना था कि शहरियों को सहूलियात फराहम करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इस तरह इसको अपग्रेड कर रहे हैं, रेनोवेट किया है इन्होंने और एक बहुत ही बेहतर माहौल में काम करने का एक मौका मिलेगा इनको। और जब ये खुद अच्छे माहौल में बैठेंगे तो पूरी उम्मीद की जाती है कि ये इंशाल्लाह ताला आवाम को भी इसी तरह बेहतर सर्विसेज दे सकेंगे। एडिशनल IG जनूबी पंजाब ने शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए इकदामात करने पर CPO की काविशों को सराहा। SSP ऑपरेशन अरसलान जाहिद, SSP इन्वेस्टिगेशन राना अशरफ, SP सिटी डिवीजन हसन रजा खाकी और दीगर अफसरान इनके हमरा थे। कैमरामैन शहाब के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा मुशावरती वर्कशॉप का इनेकाद। जनूबी पंजाब के लोगों का एजेंडा और तरक्याती तरजीहात पर होने वाली रिसर्च के हल बारे गुफ्तगू की गई। वर्कशॉप में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने शिरकत करके अपनी राय पेश की।
तरह पायलट प्रोजेक्ट के ज़ेरे एहतमाम मुल्तान में एक रोज़ा मुशावरती वर्कशॉप सजाएगी, जिसके लिए मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने इश्तराक किया था। वर्कशॉप का मकसद जनूबी पंजाब में लोगों के एजेंडे और तरक्याती तरजीहात पर की गई रिसर्च पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की राय के लिए एक्शन प्लान तश्कील देना था। CEO LPP डॉक्टर अब्दुल सबूर का कहना था कि जनूबी पंजाब के बजट में इजाफा और सेक्रेटरीट को फाल करना जरूरी है। 2024 और 25 के बजट में पंजाब के बजट का अब हमें 20% मिल रहा है, जो पिछले साल तक 35% था। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो ड्रास्टिक चेंज आई है, एक तरह से ज़्यादती है पूरे वसेब से कि 15% तरक्याती बजट कम हो गया है। दूसरी बात जो है, हमारा जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट है उसके इख्तियारात अब बहुत ही महदूद किए जा रहे हैं, ये भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। वर्कशॉप में एडिटर रोहित, डॉक्टर अमजद बुखारी समेत तालीमी, सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की और अपनी राय का इजहार किया। शुरका का कहना था कि जनूबी पंजाब को तरक्की और खुद मुख्तारी की राह पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हुकूमत इस खित्ते की महरूमियां दूर करे। अगर यूनिवर्सिटियों को एंगेज किया जाए इस तरह से जैसा कि LPP ने एंगेज किया हमें अपनी रिसर्च में, तो हमारे लिए एक नई डायमेंशन थी और हमें अपना एक रोल थ्योरी से आगे चल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हमने इस चीज़ को देखा। मैंने अपने स्टूडेंट्स के सामने ये रिसर्च पेश की और मैंने अपने कई जो MPhil के स्टूडेंट्स थे उनको मैंने साउथ पंजाब स्पेसिफिक रिसर्च के ऊपर टॉपिक दिए, वो असाइन किए, वो अब रिसर्च कर रहे हैं। हम अपनी ज़बान, अदब, सकाफत, उसके मामले के सारे मुहाफिज हैं। सिविल सोसाइटी बेदार हो चुकी है। अब इनकी निशानदेही के तहत फुट स्टेप बना के, एक्शन प्लान बना के ये मुकदमा आगे बढ़ेगा। 70-75 साल से जो समाजी नाइंसाफ़ी हो रही है, अब मजीद उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शुरका का यह भी मानना था कि इस खित्ते की तरक्की के लिए नौजवानों में आगाही जरूरी है ताकि वो मजबूत आवाज उठा सकें। इस मकसद के लिए तालीमी इदारों में बाकायदा सेमिनार्स का इनेकाद करवाया जाए। कैमरामैन आसिफ सिद्दीक के साथ शकील सुल्तान, रोही न्यूज़, मुल्तान। महकमे ज़राअत पंजाब कपास की बेहतर पैदावार के लिए मुतहरिक। डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल पेस्टिसाइड पंजाब का सादिकाबाद का दौरा। उन्होंने मॉडल फॉर्म्स पर कपास की फसल चेक की और काश्तकारों से मुलाकातें करके उनके मसाइल सुने। डायरेक्टर जनरल महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल पेस्टिसाइड डॉक्टर मोहम्मद आमिर रसूल की सादिकाबाद आमद। उन्होंने अपनी टीम के हमरा सादिकाबाद के मुतअद्दिद चकूक में मुख्तलिफ मॉडल फार्म्स का विजिट करके कपास की फसल का मुआयना किया। DG ने फसल की ग्रोथ और कीड़ों के हमले के हवाले से सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार पाया। तरक्की पसंद काश्तकारों से मुलाकात के दौरान इनका कहना था कि कपास हमारी मईशत की बैकबोन है और पंजाब हुकूमत इस फसल पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। कॉटन में कोई शक नहीं है कि हमारी बैकबोन है और गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा, हम 2-3 साल से रिवाइवल के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। उसी सिलसिले में अभी भी आज मैं कल से निकला हूँ साउथ पंजाब। स्पेशली यही प्लान है कि चूँकि ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज है कॉटन क्रॉप की, इंसेक्ट पेस्ट के हवाले से, और इस वक्त फ्रूटिंग भी भरपूर है, तो इस पे अभी हम बहुत ज़रूरी है कि हमारी टीमें जो हैं फील्ड फॉर्मेशन विजिलेंट रहे और हम असेस कर सकें कि पेस्ट सिचुएशन इस वक्त क्या है और जो एडवाइजरी है इस वक्त करंट वेदर के हिसाब से फौरी तौर पर जो है फार्मर को पहुंचाई जाए। किसानों का मानना था कि महकमा ज़राअत की इस तरह की सरगर्मी हमारे लिए फायदा मंद है। महकमा ज़राअत के अफसरान की आमद और इनकी मुफीद रहनुमाई करने को सराहते हैं। हम बहुत ज्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं इनकी रहनुमाई से और इनकी गाइडेंस से, और हम बहुत खुश हैं कि इतनी गर्मी में और इतने टफ हालात में भी ये इस तरह खेतों में फिर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और हम उसके बारे में जो भी इनके ख्यालात हैं उससे हमें शेयर कर रहे हैं। DG डॉक्टर आमिर रसूल ने महकमा ज़राअत के अहलकारों को हदायत दी कि इस वक्त कपास की फसल इंतहाई अहम मरहला में दाखिल हो गई है, वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त फील्ड में गुजारें और प्लांट प्रोडक्शन के हवाले से किसानों की बर वक्त रहनुमाई करें कि वो अपनी फसल से ज्यादा पैदावार हासिल कर सके। कैमरा टीम के साथ फरहान इकबाल, रोही, सादिकाबाद।